Hello, everybody. Once again, I'm back to you with a new topic, and this important is very much. This topic is very much important for your NEET examinations, and the topic is immunity and infectious diseases. So let us start this. Right. So before starting to the topic, let us have just a revision of all the very important terms which you require to know or which you must know for this to understand or to have a deep understanding of this topic. So, what is disease? So, you all might be knowing disease is the condition in which the organ or the multiple organs or a system of the system of the disease of the body do not functions as it should, and it also shows some symptoms by which we can understand that yes, the body is not working properly. So that condition is known as disease. Next is the infectious disease. So disease can are categorized into actually three types: infectious disease, non-communicable disease, then we have the nosocomial disease, we also have the lifestyle diseases. So these are the different categorizations. So infectious disease are those category of diseases which are spread from one infected person to a healthy person, right? Now, in the non-communicable diseases, these are not spread from direct contact of infected person to a healthy person. So very good example of the infectious disease you can say, like today's in scenario coronavirus, the COVID-19, the disease, it is an infectious disease because any infected person can spread it to the other persons. So it is also known as the communicable diseases or transferable diseases, while the non-communicable diseases are the non-infectious diseases. Okay, like common cold, it is also a communicable disease. When any person in your family or in among your friends get infected, caught the common cold and cough, definitely you are on the higher chance to get the disease, because but if your immune system is good, you will not get the disease. Similar is the condition with the coronavirus also. Then as I talked, the nosocomial diseases, although it is not written here, but I would like to tell you that nosocomial diseases are those category of disease which you acquire when you visit a hospital. It means when a healthy person visits a hospital to visit their relatives or for some other purpose, and when they return, they get caught with some disease. So such kind of diseases are known as categorized as or classified as nosocomial diseases. Okay, then I also used the term lifestyle disease. Lifestyle diseases are those diseases which you get due to the change in your lifestyle, like diabetes, obesity, hypertension. Okay, then blood pressure, then uh, cancer. These are the these are the diseases which are categorized as the lifestyle diseases, which you can get or you are susceptible as per your lifestyle, how you live the life, how you practice your daily life, that decides whether you get it to that disease or not. Okay, then for these infectious, non-infectious and nosocomial diseases, there must be some agent or कोई ऐसा होना चाहिए जो कि डिजीज कॉज करे. So those agents are known as the pathogens. Okay, these pathogens are actually the disease causing organisms. ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकता है, ये प्रोटोजोआ हो सकते हैं, ये विरियंस हो सकते हैं, ये प्रियंस हो सकते हैं. These are all the pathogens. Now जो इनका मोड ऑफ एक्शन होता है, जिस तरीके से ये डिजीज कॉज करते हैं, इसको बोलते हैं पैथोजेनिसिटी. ओके, चलिए, there here you can see I have listed some more terms which you will require to know, like bacteremia. जब ब्लड में बैक्टीरिया का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, that is called bacteremia. Then similarly viremia is there. Then opportunistic organisms जो कि those pathogens, those organisms, microorganisms which are you actually the part of the system, which are present in our body already, but when your immune system get weakened, they cause the disease. Like SRES is also there, then E. coli is there. They are the part of this normal microflora.
but when your immune system weakens, they cause the disease. So just go through these terms. It will this video will be with you, so you can refer to these. And there may be some questions you might be getting, like sporadic, like epidemic, pandemic. These are the these are the terms which are very much useful for you people. What are the epidemic disease? What are endemic disease? What are pandemic disease? What are sporadic disease? Okay, so these will be these terms will be useful to you. I'm just for your information, I have kept this slide here so that you can go through these terms and you can have them. Chaliye, very quickly we will go through this uh, uh, diseases, and my main focus today will be the immunity. So coming to this the toxins, so you might be knowing, as you have studied, that toxins can be of three types: endotoxins, enterotoxins, and exotoxins. So as per the name terms, exo means outside. So when some pathogen or the some bacteria produces the toxin before going to your body, you do not ingest the bacteria itself, but you ingest some food material in which the bacteria has grown and it has synthesized or it has secreted the toxin. So such toxins are known as the exotoxins, outside the body. They are present in the food item. It is not present in the it is not produced inside your body. So those are called the exotoxins. Then there is another category called the endotoxins. It means, what does that category includes? That you ingest the bacteria, आपके अंदर बैक्टीरिया चला जाता है और बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर जा करके फिर वहां पे टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और उस टॉक्सिन की वजह से फिर आपको डिजीज होती है. Such kind of toxins are known as endotoxins. Okay. Then third is the enterotoxins, जो कि इंटेरिक बैक्टीरिया होते हैं. इंटेरिक बैक्टीरिया वो होते हैं जो कि इंटेरिक डिजीजेस कॉज करते हैं, लाइक डायरिया है. देन सम डिजीजेस आर देयर जो कि इंटेरिक बैक्टीरिया जो कि मेनली गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कॉलोनाइज करते हैं, उनके लिए यूज करते हैं वो इंटेरिक बैक्टीरिया. और वो मेनली फूड और वाटर के थ्रू जो है वो ज्यादा आते हैं, स्प्रेड होते हैं. सो दैट्स वाई उनको कैटेगराइज किया गया इंटेरिक बैक्टीरिया, और उनके थ्रू जो टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं उसको इंटेरिक टॉक्सिन्स बोलते हैं. राइट. सो हेयर आर बहुत सारे हैं, बट आई हैव पुट हेयर सम वेरी इंपॉर्टेंट. आई विल जस्ट गो थ्रू देम वन बाय वन. You have heard the names, you have heard those, but just to keep you in mind, I have included this slide here. Like Bacillus anthracis, it produces anthrax toxin, and anthrax toxin is very dangerous, you know. Then Bordetella species, that they produces Bordetella adenylate cyclase toxin. Remember this name. Sometimes exams में ये term toxins पूछ लिया जाता है. Like they may give you the name of toxin, and yet they may give you few name of confusing bacteria, and they will ask that which bacteria produces this toxin. Like pertussis, it is very much clear. Bordetella pertussis produces it. Then botulinum toxin, it is produced by Clostridium botulinum. Then tetanus टॉक्सिन, इट इज प्रोड्यूस बाय क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी. टेटनस एक डिजीज होती है जो कि अगर आपको रॉड्स, अगर आप सड़क पे गिर जाओ तो आपको डॉक्टर प्रेफर करता है कि टेटनस का इंजेक्शन ले लीजिएगा. बिकॉज सड़क पे जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो यूजुअली सॉइल में प्रेजेंट होता है. डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, अगर कुछ रस्टेड नेल आपको लग गया, then you have the chances to get the tetanus disease. That's why, and that is caused by the organism Clostridium tetani. So Clostridium tetani, it produces tetanus toxin and causes the disease tetanus. Then Vibrio cholerae. Vibrio cholerae is the causal organism which produces cholera toxin, and the disease which is caused is cholera. Then Corynebacterium diphtheria, it produces diphtheria toxin. E. coli, आपको लगता है E. coli क्या है? Normal? No, it also produces toxin, and it is also part of the body. So it is one of the opportunistic microorganisms. E. coli produces heat labile toxin. Okay. जो फूड अगर हीट आप अगर वो प्रोड्यूस फूड में इन्फेक्शन है और फूड को आप हीट करो तो वो डिग्रेड हो जाता है, हीट लेबाइल. some other toxins are there which are heat sensitive toxins. So then we have Pseudomonas aeruginosa, which produces Pseudomonas exotoxin A. Okay. Then we have the Shigella dysentery microorganism which produces Shiga toxin, and other species of Shigella, they produce Shiga-like toxin. This is important. Shigella toxin and Shiga-like toxin. Okay.
Now, a quick glimpse of the various some important bacteria and the disease caused by them. Few I have already taken the name, and out of them, the most important are the Clostridium tetani, then Clostridium perfringi, which causes gas gangrene. Then we have the Vibrio cholera. Then we have the Neisseria meningitis. It causes bacterial meningitis. Keep in mind, bacterial meningitis is caused by Neisseria meningitis. Then we have Yersinia pestis. It causes plague. Bubonic plague is caused by the Yersinia pestis. Then we have the Asorius, which is a normal part of the body, but it also causes nosocomial infection, which I had taken the name. The hospital, if you visit a hospital and you get you get the disease, it is categorized as nosocomial infection. Then we have Klebsiella pneumoniae. For that, it causes pneumonia. Then we have Shigella, which causes shigellosis. Then we have, you can see here, L. pneumophila, which causes contact fever. Now, these you can remember those, or there are some diseases which are named after the organism causes, but there are other diseases which are not named after the organism, and those are the important picks which you can get in the question, like Q fever. It is caused by Coxiella burnetii. Then Rocky Mountain spotted fever. It is caused by rickettsia. Then Hansen disease. Hansen disease. Remember this thing. Hansen disease is also known as leprosy, and it is caused by Mycobacterium leprae. Okay. Similarly, we have tuberculosis, which is caused by Mycobacterium tuberculei. Okay, so these are the some of the here you can see Mycobacterium bovis, Mycobacterium africum, and Mycobacterium tuberculosis, which causes tuberculosis. Then Mycoplasma pneumoniae, which causes mycoplasmal pneumonia. Okay, so yeah, you can just have refer to this term, important list of diseases which will be asked, which you will definitely here from here you will get 2 to 3 questions in your NEET exam. That is for sure. Okay, so those were the bacterial disease. Let us come to the viral diseases also. And this is the list of important hepatitis. Hepatitis is the disease of liver. It is, you can see here that these are the different hepatitis and the how it is transmitted, like hepatitis A. It, here you can see this one is the name of the disease, and these are the virus. So hepatitis A is the disease caused by hepatitis virus, and it is the genomic material of the virus is RNA. And you see here the hepatitis B, it is caused by hepatitis B virus, but its DNA is genetic material is DNA. Similarly, hepatitis C. So hepatitis A, C, D, and E. These are all the RNA viruses which causes different types of hepatitis. And the exception, remember, in the life science, exceptions are always there, and they are the quick, or they are the favorite choice for the questions. Okay, so hepatitis B has the DNA as the genetic material, and it causes hepatitis B. This uh, all, this table also contains other information, and for you people the important one is the transmission. You can have it, you can just go through this so that you can refer this, and if it is comes into the examination, you may not miss those questions. Coming to the other gastroenteritic viruses, like you can see the rotaviruses, the Norvac virus and noroviruses, then calciviruses and astroviruses. And this is the list of the diseases, like pediatric diarrhea, the small diarrhea of the small children. Pediatric diarrhea is caused by astroviruses or calciviruses. Then we have the large outbreak of rotaviruses. In these are the different disease symptoms which you might have studied in your 12th class. If not, that's good that you can have the extra information on this topic. Okay, these are the arboviruses diseases which are caused, and the vectors.
So you can see here, this is also important. You may get one or two questions from this portion also. These are the vectors or the mosquitoes, ticks, flies. These are the very frequent carriers which carries the uh, causal organism. Okay, so like you can see here, California encephalitis, Easter equine encephalitis, St. Louis encephalitis, Venezuela equine encephalitis, Western equine and West Nile fever. These are the West Nile fever. You may have seen the question in your exams. Then California encephalitis and then St. Louis encephalitis. These are the these may be asked, and the vector for them are the mosquito and mostly the Aedes aegypti. The malaria is also caused by the Aedes aegypti mosquito. Yes. Okay. This I will come later on. No, let us finish it also. So this is the HIV. HIV is the human immunovirus. HIV stands for human immunovirus, and the disease which it causes is called the AIDS or acquired immunodeficiency disease. Acquired immunodeficiency disease. Very important term is why it is immunodeficiency, because you can see here in this one, it attacks the T cells. I will come later that our body have lymphocytes, and among them two types of lymphocytes are there: B lymphocytes and T lymphocytes. Now T lymphocytes play a very important role in the stimulation of immune system. हमारे immune system को stimulate करने में T lymphocytes का बहुत बड़ा रोल है. एंड ये जो HIV वायरस होता है ये इन T cells के ऊपर ही अटैक करता है. That's why ये हमारे immune system को weak कर देता है. So here is the structure of this HIV virus. You can see इसमें जो आपके लिए important है, इसके इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखिए. जस्ट मैं ग्लिम्स दूंगा इसका कि इसमें क्या होता है. ये एक इन्वेलप वायरस होती है. वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है वो यहाँ पे है. इट इज RNA वायरस. ओके, रिमेंबर इट. इट इज ऑल्सो आस्क्ड HIV इज विच काइंड ऑफ वायरस. HIV के पास जीनोमिक मटेरियल क्या होता है. So if you get the option single stranded RNA, you must tick that one. It is a single stranded RNA virus. The first information is important information. Second is it uses reverse transcriptase enzyme. Okay, it uses reverse transcriptase enzyme to copy its genetic material. Because आपने पढ़ा होगा कि सेंट्रल डॉगमा एक प्रोसेस होता है जिसमें कि DNA से DNA बनता है, that is called replication. Then DNA to RNA, that is transcription, and RNA to protein, that is translation. So RNA to protein बनने के लिए एक फंक्शनल RNA चाहिए होता है. और यहाँ पे वायरस को, ये जो अपना HIV वायरस है, इसको अपने RNA की कॉपीज बनाने के लिए पहले उसको DNA में जाना पड़ता है. एंड द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस of DNA from RNA is called reverse transcription. एंड इसके लिए जो एंजाइम चाहिए होता है, that enzyme is known as reverse transcriptase enzyme. और ये एंजाइम वायरस अपने साथ लेकर के चलता है. वो डिपेंडेंट नहीं रहता है कि होस्ट में जाकर के लेगा, वो अपने साथ लेके चलता है. होस्ट इसका कौन है? वी द पीपल, हम लोग. हमारे अंदर RNA से DNA नहीं बनता है normally. That's why we do not carry the reverse transcriptase enzyme. That's why the virus carries their own reverse transcriptase enzyme. This HIV virus, it has RNA, single stranded RNA as its genetic material, and it carries reverse transcriptase enzyme. Why so? To synthesize DNA copies of the RNA. Okay, ये तो हो गई बात. Now, as I said, ये इन्वेलप्ड वायरसेस है. इसके ऊपर लिपिड की एक लेयर होती है, लिपिड बाइलेयर. जैसे हमारे सेल्स में लिपिड बाइलेयर होती है, वैसे इसके ऊपर भी लिपिड की बाइलेयर प्रेजेंट होती है. एंड दिस लिपिड बाइलेयर कंटेन्स सम ग्लाइकोप्रोटीन्स. ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, GP स्टैंड्स फॉर ग्लाइकोप्रोटीन्स. सो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स इसके सरफेस पे इम्बेडेड होते हैं इसमें. अब आप देखो यहाँ पे GP120, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नेट में आ सकती है ये क्वेश्चन कि GP120 या फिर ये कि HIV वायरस के ऊपर कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन प्रेजेंट होता है. सो यू मस्ट रिमेंबर
GP120 एंड GP41, ये दो एंजाइम, ये दो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो HIV वायरस के इन्वेलप पे एम्बेडेड होता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नाउ ये चीजें इतनी डिटेल्स की आपकी नहीं है, MSc क्लास 1 और क्लास 2 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू हैव इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन इसके पास होता है, HIV वायरस किस तरह का वायरस है, इट इज एन इन्वेलप्ड वायरसेस। Then third important thing, which type of genetic material it contains. It contains single stranded RNA as its genetic material. Then it also asked reverse transcriptase वो खुद का होता है या host से लेता है, नहीं उसका खुद का होता है। Okay, so these are the important things which you should know about the HIV virus. Now coming to the immune system. Okay, चलिए, so in the immune system, this is the human immune system. Immune system जो हमारा होता है, that is divided into two part. One is the innate immunity, or which is also known as the natural immunity or the non-specific immunity. Innate immunity के तीन नाम हैं, natural immunity and non-specific immunity. Okay, so you must remember this. And second part जो होता है हमारे immune system का, that is the adaptive immune system, adaptive immunity. The word adaptive ये आपको समझ में आना चाहिए, दिस इज द एक्वायर्ड, हमारे ये हम लोग थ्रू आउट द लाइफ जैसे जैसे एक्सपोजर होता है वैसे वैसे हम इसको ये अडेप्ट होता जाता है। ओके, दिस इज द नेचुरल नॉन स्पेसिफिक, दैट इज द इननेट इम्यूनिटी, एंड दिस वन इज द एडेप्टिव इम्यूनिटी, जो कि हमें थ्रू आउट द लाइफ जैसे जैसे हमारी एक्सपोजर होती है एंटीजेंस के साथ वैसे वैसे ये हमारा डेवलप होता जाता है, लर्निंग, ये लर्न करता है। ओके, नाउ एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एंटीबॉडीज ही एक्चुअली फंक्शनल होते हैं, जो कि एंटीजेंस के, एंटीजेंस आप बोल रहे होगे कि एंटीजन एंटीजन में वर्ड यूज कर रहा हूँ, आपको पता होगा एंटीजेंस वो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं जो बाहर से आए हुए पार्टिकल, दे मे बी बैक्टीरिया, दे मे बी वायरस, दे मे बी फंजाई, दे मे बी प्रोटोजोआ, दे मे बी एनी काइंड ऑफ पैरासाइट, जो बाहर से आया हुआ है उसको हम यहाँ पे एंटीजन बोलते हैं। और एंटीजन को किल करने के लिए एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, जो कि एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के थ्रू होता है। ओके, नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट इज नाउ इननेट इम्यूनिटी के कितने टाइप्स होते हैं। इननेट इम्यूनिटी में देखिए, इसमें इननेट इम्यूनिटी इटसेल्फ हैज 4 important branches, like our military has 3 branches, army, navy and air force. Similarly, innate immunity has 4 different branches. It has the anatomical barrier, it has the physiological barrier, it has the phagocytotic barrier and it has the inflammatory barrier. ये 4 barriers होते हैं। एंड एनाटॉमिकल बैरियर में जो हमारी बॉडी के एनाटॉमी के जो पार्ट होते हैं वो उसमें आते हैं एनाटॉमिकल बैरियर में। फिजियोलॉजी में जो हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी का पार्ट है, जो हमारी बॉडी में जो प्रोसेसेस चलते हैं उसका जो पार्ट है वो फिजियोलॉजी में होती है। फैगोसाइटोसिस, इट इज इटसेल्फ अ प्रोसेस, कोई एंटीजन बाहर से आया उसको इनगल्फ करना और इनगल्फ करके उसको डिग्रेड कर देना, दैट इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। एंड इन्फ्लामेशन, कहीं पे आपको चोट लगती है, कहीं पे टिश्यू डैमेज हो जाता है, वहां पे जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन। ओके, फ्लेम, हीट से वर्ड आया है फ्लेम, तो जहां पे चोट लगती है वहां पे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसको लेकर के ये टर्म है इन्फ्लामेशन। ओके, वन बाय वन जस्ट मैं इसको डिस्कस करूंगा, लीजिए। सो कंपोनेंट्स ऑफ इनेट इम्यून सिस्टम। इनेट इम्यून सिस्टम में हमारे सबसे पहले एनाटॉमिकल बैरियर, एनाटॉमिकल बैरियर में फिजिकल बैरियर्स एंड द केमिकल बैरियर्स। ओके, नाउ फिजिकल बैरियर्स में सबसे पहला जो होता है दैट इज द स्किन। स्किन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पूरी इम्यूनिटी में। नाउ स्किन कैसे रोल प्ले करता है, तो जस्ट मैं कुछ की टर्म्स बोलूंगा क्योंकि डिटेल्स अभी यहाँ पे हम इतने शॉर्ट टाइम में नहीं कर सकते हैं। जस्ट कुछ वेरी इंपॉर्टेंट की टर्म्स जो कि आपको याद रखना है। सो स्किन के 3 लेयर होते हैं, एज यू कैन सी हियर, एपिडर्मिस, डर्मिस, ओके, एंड एपिडर्मिस और डर्मिस, ये 2 लेयर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। एपिडर्मिस जो सबसे ऊपर का पार्ट है वो होता है, ओके, एंड डर्मिस जिसमें के ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ ये जो डर्मिस होता है इसके अंदर सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि सीबम सिक्रीट करता है, एंड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं जो कि स्वेटिंग करवाता है। ओके, नाउ व्हाई
इस पे एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ? यू सी, आप इस फिगर में देखिए, यहाँ पे सीबेशियस ग्लैंड, यू कैन सी हियर, आप देख सकते हो ये सीबेशियस ग्लैंड यहाँ पे है। ओके, सो सीबेशियस ग्लैंड सिक्रीट्स सीबम, और ये जो सीबम होता है, सीबम का इज कंसिस्टिंग ऑफ लैक्टिक एसिड एंड सम अदर एसिड्स, और इसकी वजह से जो स्किन का पीएच होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली, द स्किन का जो पीएच होता है वो एसिडिक रहता है, एंड ड्यू टू दिस मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो कि नॉर्मल न्यूट्रल पीएच के आसपास ग्रो करते हैं वो हमारे स्किन पे ग्रो नहीं कर पाते हैं। गॉट इट? सो स्किन की पीएच क्या होती है? Acidic. This is important, which you will be you may find this question in your exams. So skin की pH acidic होती है. I hope I have, yeah, look at this point, the skin की pH is 3 to 5. Okay, the pH of skin is between 3 to 5, and due to this इस पे बैक्टीरिया जो नॉर्मल न्यूट्रल पीएच पे ग्रो करते हैं वो यहाँ पे ग्रो नहीं कर सकते हैं। ओके, और ये क्यों होता है एसिडिक? ड्यू टू सीबम, जो मैंने भी बताया, सीबेशियस ग्लैंड का प्रोडक्ट है सीबम, और उसकी वजह, सीबम के अंदर लैक्टिक एसिड एंड फैटी एसिड्स होते हैं, और इसकी वजह से वो स्किन का पीएच एसिडिक मेंटेन रखता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, स्किन के ऊपर एक केराटिन की लाइनिंग होती है। ओके, थिन जो आउटर लेयर होती है, दैट इज एपिडर्मिस, उसके ऊपर डेड मासेस का भी सेल होता है, और यहाँ पे केराटिन होती है, एंड दिस केराटिन इज द वाटर प्रूफिंग ऑफ द स्किन। हमारी स्किन पानी में भीग जाए बट गीली नहीं होती है, दैट इज ड्यू टू केराटिन, दिस यू मस्ट रिमेंबर दिस। ओके, सो यहाँ से आपके पास 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं नीट एग्जाम के लिए। फर्स्ट, वाटर प्रूफिंग किससे होता है? केराटिन से। सेकंड इज कि स्किन का पीएच कितना होता है, दैट इज बिटवीन 3 to 5, एंड थर्ड, सीबम कहाँ से सिक्रीट होता है? सीबेशियस ग्लैंड से। ओके, सो दिस वाज द मेन पर्पस ऑफ दिस। नाउ चलिए, नेक्स्ट इज योर फिजियोलॉजिकल बैरियर। ओके, एनाटॉमिकल बैरियर में स्किन हो गया। रिमेंबर वन मोर थिंग, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया। ये चीज ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट ऑर्गन विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस एरिया, दैट इज स्किन। ओके, नाउ एनाटॉमी के पार्ट में हमने ये डिस्कस कर लिया। सेकंड, कमिंग टू द फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजी जो मैंने कहा, एटलीस्ट ऑलरेडी आई टोल्ड यू, नॉर्मल फिजियोलॉजी का पार्ट होना चाहिए। सो नॉर्मल फिजियोलॉजी के पार्ट में आपके बॉडी का टेम्परेचर, the pH of a stomach, then various soluble and cell associated molecules होते हैं, lysozyme, enzymes जो कि present होते हैं, interferons, these are the chemicals, okay, then there are some complement proteins, ये आप शायद नहीं जानते होंगे, don't worry, not an issue। चलिए, so इसके बारे में one by one discuss कर लेते हैं। temperature, that is as the बॉडी की टेम्परेचर, हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर होती है, दैट इज 37 degree centigrade, right? But जब when the antigen enters the body, so what happens, we many times we feel feverish, right? Fever आ जाती है, 40 degree temperature चला जाता है बॉडी का। So why that happens? Body raises the temperature of of our own, so that जो outside से आया हुआ एंटीजन है वो सर्वाइव ना कर सके, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया, उनके लिए जो बेस्ट फेवरेबल कंडीशन होती है ग्रोथ की, दैट इज 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड। नॉर्मली हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 होता है, बट जब हमें कोई अटैक करता है, कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, कोई एक्सटर्नल एजेंट जब हमारी बॉडी में आ जाता है, तो बॉडी, हमारी इम्यून सिस्टम बॉडी का टेम्परेचर रेज करती है अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि बुखार की कंडीशन होती है। सो दैट इज टू किल द बैक्टीरिया। ओके, so this is one of the physiological barrier। second, pH, stomach का pH हमारे लिए सबसे important है, because you see most of the diseases जो आते हैं वो आपके food and waterborne diseases होते हैं। okay, so these food and waterborne diseases, they directly reach through your esophagus and food system, digestive system, to the small intestine। okay, and there the pH of a small intestine, that is stomach, is between 2 to 3, and this pH is not at all favorable for the growth of the pathogens। That's why
फूड और जो आप नॉर्मली पानी पी लेते हो, कहीं बाहर का खाना खा लिया, बट हमेशा बीमार नहीं पड़ते हो। दैट इज बिकॉज क्योंकि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जो पीएच आपका है वो बाइल जो सिक्रीट होता है वो बाइल एंड गैस्ट्रिक जूस जो आपकी बॉडी सिक्रीट करती है वो उसका पीएच मेंटेन रखती है एसिडिक पीएच, ड्यू टू विच आउटर साइड ऑर्गेनिजम्स डू नॉट सर्वाइव देयर। ओके, देन वी हैव द लाइसोजाइम्स। हमारी जो टीएस आती हैं उनमें लाइसोजाइम एक एंजाइम है, ये प्रेजेंट होता है उसमें, एज वेल एज अभी आपको आगे बताऊंगा जो आपकी टीएस है उसमें आईजीए भी प्रेजेंट होता है। सो मेन तो यहाँ पे लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम इज प्रेजेंट इन द टीएस एंड इसमें। सो लाइसोजाइम क्या करता है, फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है और वो एक्सटर्नल एजेंट्स को डिग्रेड कर देता है। ओके, देन इंटरफेरॉन्स, इंटरफेरॉन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वाई? बिकॉज interferon is produced by the virus infected cell. Now you see what happens when virus infects your body. So one cell get infected, but that cell, the infected जिस सेल में वायरस का इन्फेक्शन हो गया है वो इंटरफेरोन्स प्रोड्यूस करता है, and these interferons binds to the nearby cells and they tell कि virus has come. Okay, so these interferons are produced in response to virus and they are produced by virus infected cells, but they protect the other cells, the nearby healthy cells, they protect them. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके एग्जाम के लिए कि इंटरफेरेंस हेल्दी सेल से प्रोड्यूस होते हैं या वायरस इन्फेक्टेड सेल से प्रोड्यूस होते हैं। सो इंटरफेरेंस आर प्रोड्यूस्ड बाय द वायरस इन्फेक्टेड सेल। सेकंड क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे कि वायरल इन्फेक्शन के केस में क्या प्रोड्यूस होता है। सो इंटरफेरेंस आर प्रोड्यूस्ड। ओके, चलिए, this you might have studied. I have just kept it here to give you a reminder for this. The phagocytosis. Phagocytosis is it is an endocytic process, and you see here the from this is the cell from outside of the body. This bacteria came. Now here the first of all pseudopodia formation due to which it gets ingested into body. ये आ गया अंदर। Now अंदर आ गया, इसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है this is called phagosome. ओके, देन यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दिस इज लाइसोसोम। नाउ लाइसोसोम के अंदर लाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, लाइसोजाइम्स, ये इसके साथ फ्यूज होता है। ओके, फैगोसोम फ्यूजेस विद द लाइसोसोम, फ्यूज हो गया, इसमें जो लाइटिक एंजाइम्स है वो इसको यू कैन सी हियर ये डिग्रेड कर देता है। ओके, एंड आफ्टर डिग्रेडेशन इट इज digested and it is removed from the body. So this complete process is known as phagocytosis. This is the third barrier of the innate immune system, phagocytic barrier. Okay, next we have inflammation. इन्फ्लामेशन जैसा मैंने कहा टिश्यू जहाँ पे डैमेज होता है वहां पे रेडनेस आ जाती है। ओके, स्वेलिंग आ जाती है, र्यूबर, रेडनेस, स्वेलिंग, हीट फॉर्मेशन, वहां पे हीट बॉडी उस पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो थोड़ा सा हीटेड रहता है और वहां पे आपको पेन होता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म बोलूंगा जो कि आप शायद आपके क्वेश्चंस में आ जाए, ब्रेडिकाइनिन। ब्रेडिकाइनिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अस टू फील द पेन। जहाँ पे पेन होता है वहां पे एक्चुअली ब्रेडिकाइनिन सिक्रीट हो रहा होता है सेल्स के थ्रू, ड्यू टू विच वी फील पेन। ओके, एंड you can also the fifth symptom or fifth symbol sign of inflammation is the loss of function. जिस पर्टिकुलर एरिया पे आपको चोट लगी होती है वहां पे थोड़ा वो एरिया सुन्न पड़ जाता है, दैट इज बिकॉज आपको ज्यादा पेन या ज्यादा वो डिस्टर्बेंस उससे ना हो, दैट इज लॉस ऑफ फंक्शन। सो दिस वर ऑल। नाउ कमिंग टू द एडेप्टिव इम्यूनिटी, जो मैंने कहा सेकंड पार्ट है ये हमारे इम्यून सिस्टम का, एडेप्टिव इम्यूनिटी। एडेप्टिव इम्यूनिटी सबसे इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होती हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं इसकी, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिसिटी, इनेट इम्यून सिस्टम जो अभी हमने पहले पढ़ा जो नेचुरल इम्यून सिस्टम है जो कि हर एवरीवन ब्रिंग इट बाय बर्थ। आप जन्मे, बेबी जन्मते के साथ उसके पास इनेट इम्यून सिस्टम के सारे फंक्शंस होते हैं, बट एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के सारे फंक्शंस उसके पास नहीं होते हैं, वो ग्रेजुअली उसके पास वो डेवलप होता है थ्रू आउट द लाइफ, वो बनता जाता है क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज बनते हैं जो कि आप जब बेबी जब फीटस के जब अंदर होती है उस समय उसका ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता है पैथोजन से, दैट्स वाई उसके अंदर एडेप्टिव इम्यून सिस्टम
बहुत वेल डेवलप नहीं होता है, वो बाहर होता है। सो कैरेक्टर्स, एंटीजन की स्पेसिफिसिटी, हर एंटीजन के लिए इसका जो रिस्पांस होता है वो स्पेसिफिक होता है। एक एंटीजन का रिस्पांस सेकंड एंटीजन के अगेंस्ट काम नहीं करेगा। ओके, सो दिस इज स्पेसिफिसिटी। थर्ड इज द सेकंड इज द डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इन द सेंस कि जिस पैथोजेंस या जिस डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट आपकी बॉडी का एक्सपोजर हुआ, उसके लिए भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही हैं, एंड जिसके लिए अभी तक आपका एक्सपोजर नहीं हुआ, उसके लिए भी आपका इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर सकता है। आपका ये जो एडेप्टिव इम्यून सिस्टम होता है, ये प्रोड्यूस कर सकता है। दैट्स व्हाई this term is diversity. Okay, then immunological memory, this is very important. Immunological memory means एक बार जिस पैथोजन के अगेंस्ट बॉडी ने रिस्पांस शो कर दिया, ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट टाइम when you get exposed to a pathogen, the immune system produces the response and it produces the antibodies. Second time, if the same pathogen attacks you, then the response is very quicker, बहुत ही quickly response होता है। and कितना quick, you might be thinking. So first time जब exposure होता है किसी new pathogen के लिए, at the first exposure, the body takes at least 5 to 7 days for the production of antibodies. Okay, अभी आप ये भी देख रहे हो कोरोना वायरस के केस में भी आप ऐसा नहीं है कि आज आपको किसी आपको कहीं से इन्फेक्शन आया और आज ही आपका टेस्ट अगर करवाओगे तो आपका पॉजिटिव आ जाएगा, नहीं। जब इन्फेक्शन हुआ उसके 5 to 7 डेज के बाद बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। दैट्स व्हाई फर्स्ट रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन जो है वो इट टेक्स अराउंड 5 to 7 डेज, बट सेकेंड रिस्पॉन्स अगर आया that takes only 2 to 3 days only, so it is quicker than the first one. So why it is? Because of the memory, immunological memory. तो adaptive immune system की थर्ड कैरेक्टरिस्टिक होती है immunological memory. And the fourth characteristic is the self non self recognition. आपकी इम्यून सिस्टम आपके ही सेल्स को किल नहीं करती है, रिमेंबर, कभी भी वो आपके सेल्स को डैमेज, खुद के सेल्स को डैमेज नहीं करता है। वो हमेशा ये डिफरेंशिएट करता है कि बॉडी की सेल्स कौन सी हैं और बाहर की सेल्स कौन सी हैं। वो बैक्टीरिया जो बाहर से आते हैं उनके अगेंस्ट ही वो अटैक करता है, आपके सेल्स को डैमेज नहीं करता है। दैट एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। सो याद रखिएगा, एडेप्टिव इम्यून सिस्टम की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं: एंटीजन स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एंड सेल्फ नॉन सेल्फ रिकॉग्निशन। चलिए वेरी क्विकली मैं यहाँ पे ये बताऊंगा कि अपने एडेप्टिव इम्यून सिस्टम में कौन से जो है वो ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं। दीज आर एक्चुअली द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एडेप्टिव इम्यून सिस्टम। दीज आर लिम्फोसाइट्स। ओके, लिम्फोसाइट्स में कौन से लिम्फोसाइट्स होते हैं? दीज आर द बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, दे आर द मेजर रोल प्लेयर्स। ओके, okay, you got it, B lymphocytes and T lymphocytes. Okay, now as you can see here, so B lymphocytes and T lymphocytes ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के लिए, जैसा मैंने पहले कहा था। ये देखिए बी, अब यहाँ पे आपको बस ये क्विकली देखना है कि बी लिम्फोसाइट जो होता है वो एक्चुअली एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन आ सकता है which one is the antibody producer? So it is the B cells or B lymphocytes. B lymphocytes को B cells भी कहते हैं, T lymphocytes को T cells भी कहते हैं। Okay, now T cells जो होते हैं, T lymphocytes, ये दो तरह की होती हैं, TC cells and TH cells. H for helper, C for cytotoxic. So TC cells and TH cells. Okay, you can see here वायरस को इन्फेक्टेड सेल्स को किल करने के लिए टीसी सेल्स आती हैं, ओके, और बी सेल्स को एक्टिवेट करवाने के लिए टीएच सेल्स आती हैं। मैंने कहा था अभी कि एड्स के केस में जो एचआईवी वायरस होता है वो टीएच सेल्स को किल करना शुरू करता है, और टीएच सेल्स जरूरी होती हैं एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए। दैट्स व्हाई जब आपका एचआईवी वायरस ये टीएच सेल्स को किल करेगा तो बी सेल्स एक्टिवेट नहीं हो पाएंगी और एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा।
दैट्स वाई ये इम्यून सिस्टम को दो तरीके से मारता है। एक तो आपके टी सेल्स को, टी एच सेल्स को मार रहा है, दूसरी तरफ से वो बी सेल्स को एक्टिवेट नहीं होने दे रहा है। दैट्स वाई HIV के केस में पेशेंट जो है वो ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। चलिए कुछ और इंफॉर्मेशन बी सेल्स के बारे में। बी सेल्स की साइट ऑफ फॉर्मेशन बोन मैरो होती है। ओके हमारी बोन मैरो में ये बनते हैं। देन बनते भी वहीं पे हैं और मैच्योर भी वहीं पे होते हैं, और ये एंटीबॉडी प्रोड्यूसर्स होते हैं। दीज आर द ओनली लिम्फोसाइट्स, और आप कह सकते हैं कि ओनली सेल इन द बॉडी, हमारी बॉडी में और किसी भी सेल में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी नहीं होती है। ओनली बी सेल्स कैन प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ओके नाउ मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है उसमें दो तरह की सब कैटेगरीज होती हैं। एक होती है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरा होता है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स में बी सेल्स जो होते हैं वो उस पूरी फिल्म के हीरो होते हैं, एंड जो टी सेल मीडिएटेड है उसमें टी सेल्स जो होते हैं वो सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं। ओके सो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम टी सेल्स, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम बी सेल्स। नाउ बी सेल्स के दो टाइप होते हैं। एक तो वो जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं उनको बोलते हैं प्लाज्मा सेल्स। रिमेंबर बी सेल्स व्हिच प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज आर कॉल्ड द प्लाज्मा सेल्स। एंड सेकेंड होते हैं मेमोरी बी सेल्स, जो मैंने आपको बताया कि सेकेंड टाइम जब इन्फेक्शन होगा तो ये मेमोरी बी सेल्स तुरंत एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ओके कमिंग टू द टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स बनते बोन मैरो में हैं, बट द साइट ऑफ मैच्योरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स इज द थाइमस। यहाँ पे थाइमस एक ऑर्गन होता है, जो थाइमस इसकी साइट ऑफ मैच्योरेशन होता है। सो बी एंड टी लिम्फोसाइट दोनों बनते हैं बोन मैरो में, लेकिन बी सेल्स मैच्योर होता है बोन मैरो में और टी सेल्स मैच्योर होते हैं थाइमस में। ओके टाइप्स मैंने आपको बता दिया, टी एच एंड टी सी सेल्स, और ये जो है ये आपको बी सेल टी एच सेल्स जो होते हैं वो बी सेल्स को एक्टिवेट करवाने में हेल्प करते हैं, एंड टी सी सेल्स जो होते हैं वो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को किल करने में हेल्प करते हैं। सो यू कैन सी हियर द लिम्फोसाइट्स, ये टी एच सेल है, टी सी सेल्स है और ये बी सेल्स है, एंड दीज आर द नेचुरल किलर सेल्स जो कि फैगोसाइटोसिस करवाते हैं। चलिए वेरी क्विकली कमिंग टू द ऑर्गन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा अपने कोर्सेज के दौरान। ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम में आई विल टेल यू देयर आर टू कैटेगराइज करते हैं इसको, टू कैटेगरीज होती हैं, प्राइमरी ऑर्गन एंड सेकेंडरी ऑर्गन। प्राइमरी ऑर्गन वो जहाँ पे साइट ऑफ फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन। सो अभी हमने क्या देखा कि बोन मैरो इज द साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स, एंड मैच्योरेशन में बोन मैरो इज द साइट ऑफ मैच्योरेशन फॉर बी सेल and thymus is the site of maturation for T cells. So primary organ में bone marrow और thymus आता है। secondary organs वो होते हैं जहाँ पे कि एंटीजन के साथ इंटरेक्शन होता है। आप इसको इजीली समझ सकते हो, जैसे कि जहाँ पे मिलिट्री रहती है वो उनका बैरक होता है, लेकिन जहाँ पे वो लड़ाई जहाँ जाके करती हैं वो उनका साइट, वो लड़ाई की मैदान होता है। वो अपने बैरक में या फिर अपने कैंप में नहीं लड़ते हैं, कैंप से बाहर जाकर के वो लड़ते हैं। राइट जैसे कृष्ण महाभारत के युद्ध में देखो आप, तो कृष्ण जो है वो राज करते थे यहाँ, ठीक है, आपके राज वो कहीं और करते थे, लेकिन लड़ाई उन्होंने कहाँ करवाई, जाकर के कुरुक्षेत्र में। घर को कभी लड़ाई नहीं बनाया, लड़ाई का घर नहीं बनाया। जैसे सिमिलरली जहाँ पे बोन मैरो और थाइमस, जहाँ पे बी सेल्स और टी सेल्स बनते और मैच्योर होते हैं, वहां पे वो लड़ाई नहीं करते हैं, वो बाहर ही जाकर के लड़ाई करते हैं। तो वो बाहर जिस साइड पे लड़ाई करते हैं एंटीजेंस के साथ, उसको बोलते हैं सेकेंडरी ऑर्गन्स। और सेकेंडरी ऑर्गन्स में आपके लिम्फ होता है, स्प्लीन्स होते हैं और भी कई सारी चीजें होती हैं। चलिए ये आ गया आपका बोन मैरो, जहाँ पे कि बी सेल्स का बनना, बी सेल्स एंड टी सेल्स बनते और मैच्योर बनते हैं। बोन मैरो में बी सेल मैच्योर होता है, थाइमस में टी सेल मैच्योर होता है। एक टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है हीमेटोपोइसिस, में भी आपने पढ़ा हो, नहीं पढ़ा हो तो कोई बात नहीं, इसमें यहाँ पे आपको मैं ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। हीमेटोपोइसिस क्या होती है
हेमेटोपोइसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। हमारी ब्लड के जितने भी सेल्स हैं, WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स, ये सारे के सारे जो बनते हैं, जिस प्रोसेस से बनते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं हेमेटोपोइसिस। ओके, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शायद आपको पूछ ले ये। ओके, चलिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट बी बोन मैरो में बी लिम्फोसाइट का बनना होता है, एंड थाइमस में टी सेल्स का बनना होता है, और ये सारे के सारे स्टेम सेल्स से बनते हैं। ओके, स्टेम सेल्स स्पेसिफिक यूनिक, बहुत ही यूनिक टाइप के सेल्स होते हैं, जिससे कि बॉडी का कोई भी सेल बन सकता है, एनी सेल, चाहे वो आपके हेयर हो, चाहे वो आपके स्किन हो, चाहे वो आपके ऑर्गन्स हो, चाहे वो कोई सा भी ऑर्गन आप उठा लो, वो सारे के सारे बनते हैं स्टेम सेल्स से। बट स्टेम सेल्स में फर्दर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं, और अकॉर्डिंगली फिर सारी चीजें होती हैं ना। यहाँ पे देखिए आपके ये मेंशन्ड है, सेकेंडरी ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, पियर्स, पैचेस एंड अपेंडिसेस, ये सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं। ओके, चलिए, एक इम्पॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे आता है, ये जो मैं हाईलाइट करूंगा, हैसल्स कॉर्पोसेल्स। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, हैसल्स कॉर्पोसेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? सो ये थाइमस में प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये है आपका थाइमस का स्ट्रक्चर, इसके अंदर हैसल्स कॉर्पोसेल्स थाइमस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो आप ये रेफर कर सकते हो, ये थाइमस है, थाइमस इज द प्राइमरी ऑर्गन। आप ये देखो यहाँ पे थाइमस कहाँ प्रेजेंट है, यू कैन सी हियर। ओके, और बोन मैरो, बोन्स के बीच के जितने भी अपने हमारी बॉडी में बोन्स हैं, उनके बीच का जो स्पेस होता है वो बोन मैरो कहलाता है। ओके, चलिए, नाउ सेकेंडरी ऑर्गन्स, आपको ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, मे भी आपने डिटेल्स में नहीं पढ़ा होगा, कोई बात नहीं, ये आपको नाम पता होना चाहिए। सेकेंडरी ऑर्गन्स जहाँ पे मैंने कहा कि एंटीजेंस का बी एंटी लिम्फोसाइट्स के साथ इंटरेक्शन होता है, उनको सेकेंडरी ऑर्गन्स बोलते हैं। और ये सेकेंडरी ऑर्गन्स ये होते हैं, या तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होंगे या फिर लेस ऑर्गेनाइज्ड होंगे। जो हाईली ऑर्गेनाइज होते हैं, इसमें आपका आता है स्प्लीन और लिम्फ नोड, और जो लेस ऑर्गेनाइज होते हैं, इसमें टॉन्सिल्स, मार्ट एंड कार्ट। नाउ स्प्लीन जो होता है, स्प्लीन आपका जो है वो ब्लड के थ्रू जितने भी एंटीजेंस आते हैं, उनके लिए साइट ऑफ इंटरेक्शन होता है। और लिम्फ नोड जो आपके ब्लड के अलावा कहीं कट लग गया, उसमें अगर वहां से कोई आ गया, तो उसके थ्रू जो है, टिश्यू स्पेसिस के थ्रू जो अगर इंटर होता है, वो लिम्फ नोड में कैच हो जाता है। ओके, सो हमारा जो बॉडी है वो बहुत ही परफेक्टली डिजाइंड है, कहीं से भी एंटीजन बिना डिटेक्ट हुए नहीं आ सकता है, वो डिटेक्ट हो ही जाएगा। और फूड के थ्रू जितने भी जाते हैं, वो तो मैंने आपको पहले ही बताया, फूड एंड वाटर बॉर्न मेथड के थ्रू जो भी जाएगा, वो आपके इंटेस्टाइन में जाएगा। इंटेस्टाइन में पीएच बहुत कम होता है, वो वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बट इवन देन वहाँ पे और भी चीजें होती हैं, माल्ट, कार्ट, गाल्ट, ये सब वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि उसको किल करने के लिए सफिशियंट है। ओके, नाउ यहाँ पे एक चीज है, आपका जो स्प्लीन होता है, इसमें व्हाइट पल्प एंड रेड पल्प रीजन होता है, एंड यू रिमेम्बर स्प्लीन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेव यार्ड ऑफ द बॉडी। आरबीसी जितनी डेथ होती हैं, वो यहीं पे जाकर के उनकी डेथ होती है। ओके, चलिए, लिम्फेटिक सिस्टम, दिस इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट फॉर यू, बट मैंने आपको यहाँ पे दिया है, आप चाहो तो इसको रेफर कर सकते हो। इसके स्ट्रक्चर्स, इसमें जर्मिनल सेंटर एक टर्म आपको आ सकता है शायद, अगर कभी आया तो। ओके, अब आते हैं एंटीबॉडीज के ऊपर। ओके, हमने प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑर्गन्स ऑफ इम्यून सिस्टम कर लिया, हमने इनेट इम्यूनिटी कर ली, हमने एडेप्टिव इम्यूनिटी कर ली। इनेट इम्यूनिटी के अंदर 4 बैरियर्स होते हैं, वो हमने आपको बताया। एडेप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर आपके कौन से होते हैं? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है और ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है, वो बताया आपको। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में टी सेल्स, एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी में बी सेल्स। बी सेल्स ही वो सेल्स हैं जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, और कोई भी नहीं प्रोड्यूस करता है। ओके, चलिए, अब आते हैं एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर जरा थोड़ा सा आपको बताएंगे, बहुत डिटेल्स में आपको अभी नहीं जानना है। यू मस्ट नो, एंटीबॉडीज जो होती हैं वो प्रोटीन इन नेचर होती है, प्रोटीन होती हैं वो। और प्रोटीन किससे बना होता है? अमीनो एसिड्स से। वेरी गुड। सो ये सब जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, ये एंड आपका जो वाई शेप स्ट्रक्चर होता है, और ये पूरा का पूरा अमीनो एसिड से बना हुआ होता है। ओके,
नाउ इसके अंदर भी ये पूरा का पूरा जो एंटीबॉडी है, इसमें ये जो ग्रीन वाला रीजन आप देख रहे हो, ये वी जो वी एच और वी एल से लिखा हुआ है, ये है एंटीजन बाइंडिंग डोमेन। जो बाहर से एंटीजन आते हैं वो इस रीजन में बाइंड होते हैं। ये सारा रीजन एंटीजन से बाइंड के लिए यूज नहीं होता है, सिर्फ ये वाला पोर्शन एंटीजन बाइंडिंग के लिए यूज होता है। गॉट इट। सो एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर में आप देखोगे, आपके इंफॉर्मेशन के लिए से बता दूं, जिसमें कम अमीनो एसिड्स होते हैं, चूंकि लेस नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स है, तो उसको बोलते हैं लाइट चेन। ओके, लाइट, हल्का लाइट चेन। और जिसमें एक चेन ये वाली है जिसमें कि ज्यादा अमीनो एसिड्स होते हैं, और इसको बोलते हैं हैवी चेन, क्योंकि अमीनो एसिड्स का अपना वेट होगा, तो ज्यादा अमीनो एसिड्स होंगे तो उसका वेट ज्यादा होगा, दैट्स व्हाई इट इज हैवी चेन। ओके, सो एंटीबॉडी के अंदर 2 लाइट चेन होती हैं और 2 हैवी चेन होता है। ओके, चलिए फर्दर यहीं पे इसमें आप देख सकते हो, और वही इंफॉर्मेशन है इसमें। यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक और है, कितने नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। जो हैवी चेन होती है उसमें 446 अमीनो एसिड्स होती हैं, जबकि लाइट चेन में 214 अमीनो एसिड्स होते हैं। इसमें भी जो फर्स्ट 100 अमीनो एसिड्स है, ये वाला रीजन जो है वी एच और वी एल, सिर्फ पहले 100 अमीनो एसिड्स जो होते हैं वही एंटीजन से बाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके, चलिए नाउ वी आर अप्रोचिंग टू लास्ट। ये है हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज जो कि हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं। IgG, IgD, IgE, IgA और IgM। ओके, नाउ इसके लिए स्पेसिफिक जो है कुछ कुछ हर एक के वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। दैट्स वाई ये मैं आपको हर एक के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। IgG के बारे में चलते हैं। इसके बारे में क्या खासियत है इसकी, बहुत स्पेसिफिक फीचर इसका ये होता है कि सबसे ज़्यादा है ये मोस्ट एबंडेंट, और पूरे टोटल बॉडी सीरम, ब्लड सीरम का 80% एंटीबॉडीज जो होते हैं वो IgG ही होता है। ओके, ये एक इम्पॉर्टेंट हो गया, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होने वाला। सेकंड इसका क्या इंपॉर्टेंस है, सिर्फ IgG है जो कि प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आउट ऑफ 5 एंटीबॉडीज विच वन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा। मदर टू बेबी में कौन सी एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है बेबी के बर्थ से पहले। सो इट इज ओनली एंड ओनली IgG, सिर्फ IgG ट्रांसफर हो सकता है। ओके, अभी आपको और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप ये लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो, आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी कि IgG के 4 टाइप्स होते हैं, IgG 1, 2, 3 एंड 4। ओके, नाउ अब देखिए IgG 1, 3 एंड 4 ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं, IgG 2 नहीं कर सकता है। ओके, IgG 3 मोस्ट इफेक्टिव है कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन के लिए। IgG 1 और 3 ऑप्सोनाइजेशन करवाता है। ऑप्सोनाइजेशन एक फिनोमिनन होती है जिसमें कि एंटीजन को रोक करके उसकी टाइम को बढ़ाया जाता है जिससे कि बॉडी उसको आइडेंटिफाई कर सके। ओके, दैट इज एन एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर यू पीपल। चलिए नेक्स्ट है अपना IgM। IgM की कैरेक्टर क्या है कि ये आपका सबसे बल्कि अमीनो एसिड्स होता है, क्योंकि 5 एक सिंगल यूनिट अकेले नहीं रहता है, ये 5 यूनिट एक साथ रहते हैं, दैट्स वाई सबसे बल्कि अमीनो एसिड है IgM। और ये आपका 5 to 10% ऑफ द टोटल सीरम ये बनाता है। ओके, और ये जो चेन्स हैं ये ज्वाइंट होते हैं J चेन से। यहाँ पे एक टर्म है, मे बी आपको ये पूछा जाए एग्जाम में कि ये जो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ IgM है ये कैसे ज्वाइंट होते हैं। दे आर ज्वाइंट बाय द J चेन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। इसको आप ध्यान रखना, ये आपको बहुत काम आएगा। ओके, अब इसकी इंपॉर्टेंस देखिए। इट इज द फर्स्ट इम्यूनोग्लोबुलिन टू बी प्रोड्यूस इन द प्राइमरी रिस्पॉन्स। किसी भी एंटीजन के अटैक के केस में सबसे पहले जो प्रोड्यूस होता है वो IgM होता है। ओके, देन सेकंड क्या है, ये बी सेल्स के ऊपर, बी सेल्स के सरफेस पे जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है वो IgM होता है। ओके, नेक्स्ट है अपना IgA। IgA भी इंपॉर्टेंट है, वाई, बिकॉज इट इज द सिक्रेटरी एंटीबॉडी। ओके, मिल्क में जो मदर के मिल्क में, सलाइवा में, टीयर्स में
और म्यूकस में, इन सब में जो एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है वो IgA होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको जरूर ध्यान रखना। ब्रेस्ट मिल्क या कोलेस्ट्रम भी बोलते हैं, जब बेबी बर्थ होती है उसके बाद इनिशियल कुछ डेज जो मिल्क आता है मदर को, उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसमें IgA प्रेजेंट होता है। ओके, अदर देन दैट सलाइवा जो टीयर्स हैं उसमें और म्यूकस सिक्रीशन में, उन सब में IgA प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है इनमें? क्योंकि ये सिक्रीटरी एंटीबॉडी है, ये सिक्रीट होता है। IgM और IgA सिर्फ यही दो हैं जो कि सिक्रीट होते हैं, बाकी तीनों यानी कि IgG, IgD और IgE वो सिक्रीट नहीं होते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। ओके, IgE का कंसंट्रेशन बहुत ही लो होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एंटीबॉडीज, जो हमारे बॉडी में डिफरेंट अमीनो एसिड डिफरेंट एंटीबॉडीज होती हैं। लास्टली मैं आपको बताऊंगा ऑटो इम्यून डिजीज के बारे में, क्योंकि अभी तक हमने ये देखा कि ये सारे एंटीबॉडीज होते हैं जो कि बाहर से एंटीजन आते हैं उस पर अटैक करते हैं और उसके लिए हमें प्रोटेक्शन देते हैं। बट सम टाइम बॉडी में डिफेक्ट्स भी आ जाते हैं, कि सिस्टम है, डिफेक्ट आ सकता है। सो डिफेक्ट क्या आता है? अगर हमारे ही एंटीबॉडीज हमारे ही अगेंस्ट, हमारे ही सेल्स के अगेंस्ट एक्ट करना शुरू कर दें, तो दैट सिचुएशन इज नोन एज ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो हमारे सेल्फ, इम्यून जिसमें कि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो गया, दैट इज ऑटो इम्यून डिजीजेस। सो इसके लिए सिर्फ मैंने यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट दिया है, लिस्ट ऑफ डिजीजेस जो कि ऑटो इम्यून डिजीजेस हैं। आपको एग्जाम में ये काम आ सकता है, आप यहाँ से ये नाम जरूर देख लेना, लाइक rheumatoid, acute rheumatoid fever, autoimmune hemolytic anemia, good pasture syndrome, Graves' disease, multiple sclerosis, myasthenia gravis, then vulgaris, rheumatoid arthritis, then systemic lupus erythematosus and type 1 diabetes mellitus। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि ऑटो इम्यून डिजीज के एग्जाम्पल्स हैं, आपको ये काम आएगा। और ये आप जरूर याद रखना, भले आप ये पोर्शन और ये ऑटो एंटीजेंस एंड फिजियोलॉजी मत याद रखो, नॉट नेसेसरी फॉर यू, लेकिन आपके लिए ऑटो इम्यून डिजीजेस जो है वो जरूरी है, ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। आई होप सब कुछ आपको समझ में आया होगा। ट्राई टू गेट इट, आप इस वीडियो को बार बार देखोगे, आपको और इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी, क्योंकि मैंने कई सारे टेबल्स इसमें डाले हैं और जिससे जो कि आपको बहुत ही काम आएगा। ओके, सो कीप दिस वीडियो विथ यू, बार बार इसको देखिएगा। आई एम वेरी मच श्योर आपको ये बहुत इंफॉर्मेशन लगी इसमें मिलेगी। एंड नीट में एटलीस्ट अब इम्यूनोलॉजी के कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे, दैट इज फॉर श्योर। ओके, एंड डिजीजेस वाले क्वेश्चंस भी आपसे नहीं छूटेंगे, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे कितने टाइप डिफरेंट कॉजल ऑर्गेनिजम्स एंड द डिजीज कॉज्ड बाय देम, इवन द टॉक्सिन्स हमने जो डिस्कस किए। सो दिस ऑल विल हेल्प यू अ लॉट इन योर एग्जाम्स। आई होप यू विल फाइंड दिस PPT very much useful। And if you are anywhere in India, if you wish to visit our university, you are most welcome to come here, come down here and visit। अभी कोरोना का टाइम है, आप नहीं आ सकते हो, हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे देखिए what teaching practices we are using, what we are doing, we are doing the things differently, that's why we are different from the other universities। So best of luck for you people for your NEET examination। Thank you, thanks a lot। I hope this you will find this very much useful। Okay, thank you and best of luck।